Shall we turn to Acts of the Apostles and chapter 18? अमाल की किताब बाब नंबर 18 हम देखेंगे। And we will read the first 3 verses. पहली 3 आयतें हम पढ़ेंगे। Acts chapter 18, अमाल की किताब बाब नंबर 18 verses 1, 2, and 3. और आयतें 1, 2 और 3। After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them and wrought, for by their occupation they were tent makers. इन बातों के बाद पौलुस अथेने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया। वहाँ उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पुन्तुस की पैदाइश था, और अपनी बीवी प्रिस्किला समेत इस इतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया, और चूंकि उनका हमपेशा था उनके साथ रहा, और वो काम करने लगे, और उनका पेशा खैमा दोजी था। Shall we also turn to the book of Romans and chapter 16? रोमियों की किताब बाब नंबर 16 हम देखेंगे। And we will read verses 3, 4 and 5. 3, 4 और 5 हम पढ़ेंगे। Romans chapter 16, रोमियों की किताब बाब नंबर 16 verses 3 to 5. और 3, 4 और 5। Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruits of Achaia unto Christ. प्रिस्का और अक्विला से मेरा सलाम कहो। वो माशियक यीशुआ में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सिर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब एक्लीसियाँ भी उनकी शुक्रगुजार हैं। और उस एक्लीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। मेरे प्यारे अपिनितुस से सलाम कहो, जो माशियक के लिए आसिया का पहला फल है। Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, ऐ हमारे अजीज आसमानी बाप, we thank and praise you for the first Lord's Day in the 5th month of this year. इस साल के 5वें महीने में पहले खुदा के दिन को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Lord, already 4 months have gone by. हाँ खुदावंद, अब तक 4 महीने तो गुजर चुके हैं। You have been so good and faithful to us throughout the past 4 months. गुजरे हुए 4 महीनों में आप हम पर बहुत रहमदिल और मेहरबान बना है। You have met all our spiritual needs as well as our physical needs. हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतें आपने पूरी की थी। You thank you for your care, love, concern and protection toward us. हम पर आपने अपनी मोहब्बत और अपनी हिफाजत हम पर आपने रखी थी। Above all, we thank you, Lord, for the great salvation which you have granted to us. और इन सब से ज़्यादा जो अजीम नजात से जो आपने हमें मुलब्बस किया है खुदावंद, इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Because of this salvation alone, from the kingdom of this world, we have been translated into the kingdom of thy dear Son. और इस नजात की वजह से ही हम इस दुनिया से, इस जहां से आपके प्यारे बेटे के उस नूरानी जहां में, दुनिया में हम तब्दील हो चुके हैं। And in this kingdom of thy dear Son again, we are in the lot of the chosen people. और आपकी सल्तनत में हम बरगुज़ीदों की शुमार में शामिल हैं। And you have been pouring all your blessings upon us. और आप अपनी सारी बरकतें हम पर उंडेलते आ रहा है। You have not kept anything lacking in our spiritual lives. हमारी रूहानी जिंदगियों में कोई भी कमी आपने नहीं रखी। You have been answering all our prayers. आपने हमारी हर दुआ का जवाब देते आया। In this evil and wicked world, you have been counseling,
guiding, directing, and instructing us. इस खतरनाक और हौलनाक दुनिया में खुदा अंधेरे से भरी हुई दुनिया में आप हमारी रहनुमाई करते हुए हमारे रहबर बन चुके हैं। According to Zechariah chapter 2 and verse 5, Lord, you put a hedge around us, and you've been a wall of fire around us. खुदावन जैसे ही आपके कलाम में हम पढ़ते हैं, आप हमारे गिर्द गिर्द आप बाड़ रख चुके हैं खुदावन। In this difficult world, you've been granting your sufficient and adequate grace, sustaining us day after day. इस दुनिया में खुदावन दिन ब दिन आपकी रहमत जो हमारे लिए काफ़ी है, हम पर उंडेलते आए हैं। For all this, O Lord, we brought our praises and worship to you this evening. इन सबों को लेकर आज शाम को आपके पास हम हमदो सिताइश लाकर आपकी इबादत कर चुके हैं। We believe, Lord, thou hast heard and accepted our praises of worship. खुदावंद हम यकीन मानते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुनी और कबूल की। And now, O Lord, as we want to draw near thy table and take part in it, pray that thou will prepare our hearts. खुदावन जैसे ही अब हम आपकी मेज़ के पास आते हैं और उसमें हाथ डालने की कोशिश में हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे दिलों को तैयार करें। And also give us enough, O Lord, of thy spiritual food which can nourish and sustain us throughout this week. और इस तमाम हफ्ते में, आने वाले पूरे हफ्ते में हमारी रूहानी ग़िज़ा हमें दीजिए जो हमें मजबूत रख सकता है। We may not go away empty from your house and from your presence. आपकी हुजूरी से और आपके घर से हम खाली हाथ ना जाएं। Grant your grace to these unworthy servants as we stand here between you and your people, that thy anointing may be upon us. खुदावंद आपके और आपके लोगों के दरमियान जो नालायक खादिम बनकर हम खड़े हैं, खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपका मसा हम पर रहे। Empty us, O Lord, and fill us with your precious word. हमें खाली करके आपके बेशकीमत कलाम से हमें भर दीजिए। Those who have not been able to join us, grant them their portion. और जो भी हमारे साथ आज शामिल नहीं हो सके, उनको भी उनका हिस्सा दे दीजिए। Those who are away from us on some work or other reasons, Lord, be with them. जो भी हमसे दूर हैं खुदावंद कुछ वजह से उन पर भी रहम करें। Thank you for our dear ones who could take time and join us online. जो हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हुए हैं, वक्त लेकर आपके अजीज, आपके प्यारे, उन पर भी आपकी बरकत चाहते हैं। Give everyone their due share. हर एक को आप उनका हिस्सा, अपना अपना हिस्सा बख्शें। And also we remember our dear ones who are, Lord, working upstairs in the kitchen. Their share also they may receive. और खुदावन जो अपस्टेयर्स में किचन में काम कर रहे हैं, खुदावन उनको भी उनका हिस्सा दे We दीजिए। ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. शुक्रगुजारी के साथ ये छोटी दुआएं, सारी बातें हमारे खुदावंद यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. Shall we refer to one verse which we find in 1 Timothy and chapter 4. पहले तिमोथी की किताब में बाब नंबर 4 में एक लफ्ज है, हम उसे देखेंगे। It's a familiar verse, हम सब उसे जानते हैं। and these are the words of this great man of God, Apostle Paul. पौलुस रसूल जो खुदा के अजीम बंदे हैं, उनके हाथों से खुदा ने इन बातों का हमें दिया है। And this is written in the word of God for our benefit. और हमारी तगजिया के लिए ये कलाम हमें दिया गया है। Here the word of God says in verse 12, यहाँ पे 12वीं आयत में खुदा का कलाम बताता है, Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers. कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम एक नमूना बन। Kindly notice these words, be thou an example of the believers. बल्कि तू ईमानदारों के लिए नमूना बन। इन बातों पर गौर फरमाइए। That is the Lord's desire. ये खुदा की चाहत है। The Lord Jesus is our example. हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे लिए नमूना है। No man can be our example. कोई भी हमारे लिए नमूना नहीं बन सकता। We can receive encouragement from man, इंसान से हमें encouragement मिल सकता है, but our perfect example is the Lord. लेकिन हमारा मुकम्मल नमूना हमारे खुदावंद यीशुआ हैं। But at the same time, लेकिन उसी वक्त the Lord wants us also to encourage others, being examples to them. खुदावन चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए हम भी नमूना बने और दूसरों के लिए हौसला अफजाई, उनकी हौसला अफजाई हम कर पाएं। Now, what is the meaning of the word example? तो नमूना लफ्ज जो है उसका मतलब क्या होता है? Example explains and clarifies a thought or a principle or a doctrine.
नमूना जो होता है उससे क्या होता है, एक तालीम हो या कुछ बात हो या कोई भी और प्रिंसिपल हो, उसको बयान करता है और उसका एक्सप्लेनेशन देता We है। all know when we were students in the past, हम जानते हैं कि हम पास्ट में, माजी में स्टूडेंट्स रहे थे, the lessons that were taught to us were in two parts. और जो लेसन्स हमें पढ़ाया जाता था वो दो हिस्सों में रहते थे। There is a part that is called as theory, एक हिस्सा है जिसे थियरी कहते and हैं, then it is also followed by और examples. उसके बाद प्रैक्टिकल्स या एग्जाम्पल्स भी रहते थे। Every student loves example more than the theory. हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स या एग्जाम्पल्स को थियरी से भी बढ़कर चाहता था, And theories are explained better or understood by the examples only. और जब भी थियरी पढ़ते हैं तो थियरी को इस एग्जाम्पल के दौरान ही हम अच्छे तरीके से सीख सकते We थे। read in the Word of God the doctrine of the Lord. हम कलाम में क्या पढ़ते हैं, खुदा का कलाम करके पढ़ते हैं, And this doctrine must work in our spiritual और lives. खुदा का ये कलाम जो है वो हमारी रूहानी जिंदगियों में काम करना है। And when that works in our lives, और जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करेगा, unknown to us, we become examples to others. अनजाने ही सही हम दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं। And this present day world is looking for examples. आज का दुनिया इस एग्जाम्पल्स के लिए देख रही है। They do not want many messages. इस दुनिया को आजकल बहुत सारे पैगामात की जरूरत नहीं They do है। not want much theory these days. ज्यादा थियरी इस दुनिया को आज जरूरी नहीं है। What they require is examples which they can see and be convinced and follow. आजकल दुनिया को क्या चाहिए, देखने के लिए और उसकी पैरवी करने के लिए एक नमूना की जरूरत है। Now in the Word of God we not only see doctrine, हम खुदा के कलाम में सिर्फ डॉक्ट्रिन या तालीम को ही नहीं but we पाते, also find some very good examples. लेकिन बहुत अच्छे नमूने हमको कलाम में मिलते हैं। These examples are set by the children of God, the believers. ये नमूने जो हैं, ये नमूने खुदा के बच्चे या यीशुई मोमिनों ने And बनाया था। some of the examples are from simple people. और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो बहुत आम लोगों ने बनाया था। They are not very great men of वो God. लोग खुदा के बहुत बड़े खादिम नहीं थे, They were in fact ordinary वो believers. तो मसलन वो बहुत आम यीशुई मोमिन थे, But they were good examples लेकिन- which can be followed. लेकिन वो बहुत अच्छे नमूना बने जिनकी पैरवी कर सकते हैं। Now in the verses that we read, और जो आयतें हमने पढ़ी थी, we read about a couple यहाँ पे एक कपल के बारे में, मियाँ बीवी के बारे में पढ़ते हैं। in Acts chapter 18, आमाल की किताब बाब नंबर 18 and also we saw in Romans chapter 16. और रोमियो की किताब बाब नंबर 16 में भी हमने ये बातें पढ़ी थी। Who are they? वो ये लोग कौन They हैं? are Aquila and Priscilla. ये लोग अकुला और प्रिस्किला हैं। They are husband and wife. ये लोग मियाँ बीवी थे, And the word of God does not tell as if they had children. और खुदा का कलाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उनके बच्चे भी थे। Bible scholars, they believe they were childless. हाँ, बाइबल के माहिरीन ये समझते हैं कि शायद वो लोग उन लोगों को बच्चे नहीं थे, But even then, फिर भी they were examples to the believers. वो लोग यीशुई मोमिनों के लिए नमूना बन चुके They थे। were great encouragement to the people of God. खुदा के लोगों के लिए बहुत बड़े हौसला अफजाई के नमूने बन थे। Actually, when a couple are childless, अगर सोचिए कि अगर कोई मियाँ बीवी उनको बच्चे नहीं होते they are very discouraged. तो कैसे रहते हैं, बहुत गमज़दा रहते हैं, And they find something lacking in their और- married life. और उनकी रूहानी और उनकी शादी की जिंदगी में, इनफिरादी जिंदगी में कुछ कमी का एहसास में रहते हैं। These couple also should have had the same feelings. और ये कपल जो है, मियाँ बीवी जो है, उनको भी ऐसे ही एहसास जज्बात रहने चाहिए। But we find they don't have such an attitude at all. लेकिन हम कलाम में देखते हैं कि उनके एहसास या जज्बात ऐसे नहीं थे। And the word of God tells them few things about them here. और खुदा के कलाम में उनके बारे में कुछ बातें ऐसे लिखी गई हैं। First of all, पहली we बात, see in the book of Romans रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं and chapter 16. आयत नंबर 16, Romans chapter 16, रोमियो की किताब बाब नंबर 16 we read in verse 3. आयत नंबर 3, Greet Priscilla and Aquila,
my helpers in Christ Jesus. प्रिस्किला और अक्विला से मेरा सलाम कहो, वो माशियक यीशुआ में मेरे हम खिदमत हैं। 4 times the word of God mentions about this couple. यहाँ पे मतलब खुदा के कलाम में 4 बार ये मियाँ बीवी के बारे में लिखा गया 2 है। times it is mentioned as Aquila and Priscilla, 2 बार अक्विला और प्रिस्किला करके लिखा गया and है 2 other times it is called as Priscilla and और Aquila. 2 बार प्रिस्किला और अक्विला करके लिखा गया That है। shows how valuable and important they were. इसका मतलब क्या है, ये लोग कितने अहम थे, ये बात हमें समझ में आती And है। also they were equally important. और इतना ही नहीं बल्कि दोनों बराबर इम्पोर्टेंट अहम थे। 2 times Aquila is coming, पहले 2 बार अक्विला आता है and then the next 2 times Priscilla is और coming. उसके बाद 2 बार पहले प्रिस्किला आती है। And what is it mentioned about here? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The man of God, Apostle Paul, says here, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहते हैं, greet Priscilla and Aquila, my helpers. प्रिस्किला और अक्विला जो मेरे हम खिदमत हैं। Both of them were helpers. ये दोनों हम खिदमत थे। What a wonderful thing, isn't it? कितना ही अजीम बात है ना। Sometimes only the husband will be a good helper, but not the wife. कभी कभार सिर्फ और सिर्फ शौहर ही बहुत हम खिदमत रहता है, लेकिन बीवी नहीं। In some cases they say, oh, that wife, that sister, she's very helpful, but not the brother. कभी कभार लोग कहते हैं कि वो बहन जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो भाई इतना अच्छा नहीं है। But here, लेकिन यहाँ पे both of them were helpers. दोनों खुदा के काम में हम खिदमत थे। Or in other words, we can use another word. और यहाँ पे और एक लफ्ज हम इस्तेमाल भी They कर were सकते हैं। co-workers with this man of God. वो इस इंसान यानी खुदा के इस बंदे के साथ काम करने वाले थे। Because we know Apostle Paul, he was also alone. क्योंकि हम जानते हैं कि पौलुस रसूल वो भी अकेला था And he needed also some company. उसको भी किसी की मदद और कंपनी की जरूरत थी। And in Acts chapter 18, और आमाल की किताब बाब नंबर 18 see में what we read about these people. इन लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है, हम क्या And देखते we हैं। read here how in verse 1, Acts chapter 18 and verse 1, अमाल की किताब बाब नंबर 18 और आयत नंबर 1 में पढ़ते that हैं, this man of God came from Athens to Corinth. ये खुदा का बंदा एथेंस से रवाना होकर कोरिन्थुस को आया था। And verse 2, आयत नंबर 2, found a certain Jew named Aquila. वहां उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला। From Corinth he is coming to Athens. कोरिन्थुस से वो एथेंस से वो कोरिन्थुस को आया। He does not know anybody there. कोरिन्थुस में उसको कोई किसी को वो नहीं जानता But था। he found this Jew named Aquila there. लेकिन यहाँ पे अक्विला को उसने पाया जो And यहूदी था he was along with his wife. और वो अपनी बीवी के साथ वहां अकेला बसता था। And then he discovered they also belong to the same profession of being tent makers. और उसने ये भी पाया कि वो दोनों भी इसके बराबर हम पेशा के थे। And because of that, और उस वजह से Apostle Paul, this man of God, went and joined with them. पौलुस रसूल जाकर उनके साथ रहने लगा। What does it show? इससे क्या पता चलता है? He found somebody to cooperate and work along with. हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि पौलुस रसूल को कुछ लोग मिले जो उसके साथ रहकर उसकी मदद कर सकते हैं। Now that could happen because both Aquila and Priscilla received and also welcomed this man of God, Apostle Paul. तो इससे हमें पता चलता है कि पौलुस को ये दोनों यानी अक्विला और प्रिस्किला ने उसको कबूल किया और अपने पास ले लिया। See what an example they are. देखिए कितना अच्छा नमूना ये दिखा रहे They are हैं। strangers. वो लोग यहाँ पे नए आए They हैं, are strangers to one another. ये एक दूसरे के लिए अनजान हैं, But they were able to accommodate the man of God, Apostle Paul. लेकिन ये दोनों पौलुस रसूल खुदा के बंदे को अपना लिए हैं। So that is how they went on to become helpers of Apostle Paul. इस तरीके से पौलुस रसूल खुदा के खादिम के हम खिदमतगार बन चुके हैं। There are many men of God who require such an attitude.
आजकल दुनिया में बहुत सारे मर्द खुदा ऐसे हैं जिनको इस तरह का रवैया सीखने की जरूरत है। They want some helpers. मतलब उनको भी कुछ मददगार की जरूरत है। They want some supporters. उनको भी कुछ सपोर्ट करने वाले उनकी जरूरत है। They want some people to understand their needs and help them. उनको भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनकी हाजतें समझे और उनकी मदद करें। Can we be such helpers? क्या हम उनके लिए उस तरह के मददगार बन सकते हैं क्या? Whether we are single or married, शायद हम अकेले हैं या शादीशुदा हैं। the servants of God, खुदा के लोग, the men of खुदा God, के बंदे, the workers in the vineyard of the Lord, खुदा के विन्यार्ड में पाकिस्तान में काम करने वाले लोग जो होते हैं, they want helpers and also encouragers. उनको मददगारों की जरूरत है, हौसला अफजाई करने वालों की जरूरत है। Are we such क्या helpers? हम उस तरह के मददगार बन रहे हैं? As far as Aquila and Priscilla is concerned, जैसे हम अकुला और प्रिस्किला को देखते हैं, oh, they were वो helpers. लोग मददगार थे। Helpers to start with to the man of God. खुदा के बंदे को मदद करने वाले थे। And then secondly, दूसरी बात, they were also hospitable. वो लोग बहुत हॉस्पिटेबल थे, यानी लोगों की जरूरतें देखने वाले थे। This extending hospitality is also important on the part of us as believers. ये हॉस्पिटैलिटी जो होती है यीशुई मोमिन होने के नाते हमारी जिंदगियों में भी उसकी जरूरत है। Here in Romans chapter 12, रोमियो की किताब बाब नंबर 12 में some very important instructions are given to the believers. यीशुई मोमिनों के लिए कुछ बहुत अहकाम दिए गए हैं। That we read from verse 11 onwards. 11वीं आयत से वो हम पढ़ते हैं। Romans chapter 12 and from verse 11 onwards. रोमियो की किताब और बाब नंबर 12 और आयतें 11 से। For example, in verse 11, मसलन 11वीं आयत में, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। Oh, we must serve the Lord. हमें खुदा की खिदमत करने की जरूरत है। Now come to verse 13. अब 13वीं आयत देखेंगे। Distributing to the necessity of saints, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, given to hospitality. मुसाफिर परवरी में लगे रहो। That is what these Aquila and Priscilla were doing. अकुला प्रिस्किला जो हैं यही करते रहते थे। We call ourselves as believers. हम अपने आप को मोमिन कहलाते हैं। We are a long time believers, हम बहुत सालों से मोमिन बन चुके हैं। coming regularly to the house of God. बिला नागा खुदा के घर में आते रहते हैं। But how is our attitude today? लेकिन आज हमारा रवैया कैसा है? Are we like Aquila and Priscilla? क्या हम अकुला और प्रिस्किला के जैसे हैं? Are we helpers to the men of God and the servants of God? क्या हम खुदा के बंदों को और खुदा के मर्द खुदा के मददगार बन चुके हैं? And if you want to be a helper, अगर आप मददगार बनना चाहते you हैं need to sacrifice a bit. तो आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। Without sacrifice, you cannot be a helper. कुछ कुर्बानी करे बगैर आप मददगार नहीं बन सकते। And further, और आगे बढ़े, as we see about this couple, इन दोनों के बारे में अगर हम they देखें were also hospitable. तो ये लोग मुसाफिर परवरी करते थे। How do we see that? हमें कैसा पता? As we saw already in Acts chapter 18, आमाल की किताब बाब नंबर 18 में जैसे हमने they देख were लिया, hospitable to the man of God, Apostle Paul himself. खुदा के बंदे पौलुस रसूल के बारे में भी उन्होंने मुसाफिर परवरी दिखाई थी। How hospitable they were. कितनी बड़ी परवरी मुसाफिर परवरी की So थी। much so, in Acts chapter 18, verse 3 we read, Paul went and abode with them. इतनी मुसाफिर परवरी दिखाई थी कि पौलुस रसूल, हम देखते हैं अमाल की किताब 18 में कि पौलुस रसूल जाकर खुद उनके पास बसने लगा। Now accommodating somebody in our home is not so easy. दूसरों को हमारे घर में रखना इतना आसान नहीं है। But if you are filled with the love of God, लेकिन जब अगर आप खुदा की मोहब्बत से भरे हुए if you हैं, truly look at the need of others, अगर दूसरों की जरूरत पर आप निगाह करेंगे, what will you do? तो आप क्या करेंगे? You will open your house with hospitality. आप अपने घर को खोलेंगे और मुसाफिर परवरी दिखाएंगे। We read about a man in Mark's Gospel chapter 2. मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 2 में एक इंसान के बारे में हम वहां पढ़ते हैं। Do you know his name? उसका नाम क्या आप जानते हैं क्या? Can anybody tell his name, please? क्या आप में से कोई उसका नाम बता सकते हैं? Mark's Gospel chapter 2. मार्कुस की खुशखबरी बाब नंबर 2। We are all very, very well aware of that incident हम there. सब वहाँ जो वाकया है उसे हम सब
अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, but I want to know what is his name. लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस घर के मालिक का नाम क्या है। What is his name? क्या है उसका नाम? No name. वहां नाम नहीं दिया गया। We do not know why the Holy Spirit of God has not recorded his name. हम जानते नहीं हैं कि खुदा के पाक रूह ने उसका नाम को वहां दर्ज क्यों नहीं किया। But he's a very good example of hospitality. मुसाफिर परवरी का एक बहुत अच्छी तमसील वो बन चुका है। What did that man do? उस इंसान ने, उस घर के मालिक ने क्या He किया? threw his house and the doors open for much people to come into his house. हमारे खुदावंद यीशुआ की तालीम सुनने के लिए बहुत सारे लोगों को अंदर दाखिल होने के लिए अपने घर के दरवाजे ओपन कर दिए, खोल दिए। How many people were there? वहां पे कितने लोग थे? There was no room at all inside that वहां house. लिखा हुआ है कि वहां पे बैठने की जगह ही नहीं थी। Those days, their houses were not like our houses or apartments. उन दिनों में वो घर जो होते थे हमारे घरों जैसा या हमारे अपार्टमेंट जैसे नहीं रहते थे। If you go to Bombay, अगर आप बॉम्बे जाएंगे, within 550 square yards, एक 550 स्क्वायर यार्ड्स में ही you will even find 3 bedroom also. वहां उसमें भी 3 बेडरूम फ्लैट आपको मिलेगा। All small rooms, cubby holes, like cubby holes. कभी होल जैसा बहुत छोटे छोटे कमरे रहते हैं। This house was not like that. लेकिन यहाँ पे जो हम घर के बारे में पढ़ रहे हैं वो घर ऐसा नहीं है। It could be a 5 or 6 bedroom house. शायद वो 5 या 6 बेडरूम कमरे का घर हो सकता है। With a big hall also. उसमें बहुत बड़ा हॉल रहता है। Very big dining hall also. बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल रहता है। In all those places people were filled. लेकिन ये इन सारी जगहों में, सारे कमरों में लोग भर गए। That is hospitality. ये है मुसाफिर परवरी। He opened all the rooms for all the people. सारे लोगों के लिए सारे कमरे उसने खोल दिए। And does the hospitality stop there? और उसकी मुसाफिर परवरी क्या वहीं रुक गई? What did that man do? उसने क्या किया था? He allowed those 4 people to go on top of his house, break the roof and let down the man who was sick. उसने इतनी भी इजाजत दी थी उन 4 लोगों को ताकि वो 4 लोग ऊपर जाए, छत को खोले और उस फालिश से पड़ा हुआ इंसान को नीचे, छत से नीचे उतारे। This is what is called as hospitality at a great cost. इसे कहते हैं मुसाफिर परवरी करना और बहुत कीमत अदा करके ऐसा करना। Why do I say that? ऐसा मैं क्यों कहता हूं? Now will any one of us allow the roof to be broken? क्या हमारे घर का छत अगर कोई आकर तोड़ना चाहे तो क्या हम राजी होंगे? The roof speaks about comfort and also shelter. छत का मतलब क्या है? हमारे लिए वो पनाह है और हमारे लिए वो सुकूनत है। We can afford a crack on the wall. हम इतना तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि दीवार पर एक लकीर आ जाए, But none of us will allow a crack on our roof. लेकिन हमारे छत को कोई खराबी आए हम नहीं मानते, नहीं चाहते। Because when it rains, क्योंकि अगर बारिश होगी what will happen to the roof? तो ये छत को क्या होगा? It will start leaking. छत से पानी टपकेगा। You cannot sleep well. आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाएंगे। So the roof speaks about comfort. इसीलिए ये छत जो होता है वो कंफर्ट को याद दिलाता है। And this man was willing to even allow his comfort to be touched and broken. और ये इंसान इतना राजी था कि अपना कंफर्ट या खुशी जो है, इत्मीनान जो है, उसको भी तोड़ने के लिए इजाजत दे दी थी। So this couple were hospitable couple. तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि ये मियाँ बीवी जो हैं बहुत ही मुसाफिर परवरी करते थे। How hospitable we are. आज हम कितने हॉस्पिटल हैं या कितने मुसाफिर परवरी दिखाते हैं। Many who are needy in this world. आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग हाजतमंद हैं। Many people, many believers are in need. आजकल दुनिया में बहुत सारे यीशुई मोमिन भी हाजत में हैं। Do we open our house? क्या हमारे घरों को हम खोल रहे हैं? क्या Do we open our doors? हमारे दरवाजों को हम खोल रहे हैं? How क्या many rooms are we opening to others? दूसरों के लिए हम कितने दरवाजे खोल रहे हैं? Many believing homes are shut these days, not open. बहुत सारे यीशुई मोमिनों के घर आजकल बंद हैं, खोलना नहीं चाहते। Let us be an example to hospitality. लेकिन हम तो तमसील बनकर रहेंगे मुसाफिर परवरी की। Then this secondly, और दूसरी बात, they were also hospitable towards the believers and the church. और वो लोग जो हैं वो यीशुई मोमिनों के लिए भी मुसाफिर परवरी दिखाते थे। See Romans chapter 16. देखिए रोमियो की किताब बाब नंबर 16 verse 5. और आयत नंबर 5। This is what the man of God Paul says. यहाँ पौलुस रसूल खुदा का बंदा ऐसा कहता है, Likewise greet the church that is in their house. और उस इक्लीसिया भी सलाम कहो जो उनके घर में है।
There was a church also in their house. उनके घर में एक एक्लीसिया भी है। Oh, this requires sacrifice again. अजीजों, इसके लिए और एक बार कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। They were hospitable to all the believers. जो यीशुई मोमिन उनके घर में आते थे, उन सबों के लिए मुसाफिर परवरी दिखाते थे। Maybe they were aware of what happened in Mark's Gospel chapter 2. शायद उनको ये बात भी वाकिफ थी कि मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 2 में उस घर को क्या हुआ था। So they opened their house for all the believers, for the church. इसीलिए सारे यीशुई मोमिनों के लिए, खुदा के एक्लीसिया के लिए उन्होंने अपने घर खोल दिए। Many years ago, I went to a place for ministry. बहुत साल पहले मैंने एक घर में गया था, एक जगह गया था खुदा की खिदमत गुजारी के And that लिए, is a house of God. और वो खुदा का घर था। It is about this much place. वो बहुत छोटा कमरा था, Only one room. एक ही कमरा था। There the God servant is there. वहां पे खुदा का बंदा रहता था, His family is there. उसका घराना उसमें बसता Kitchen था। also is there. वहीं पर किचन था, And also they have got a bathroom there inside. वहीं पे अंदर छोटा सा बाथरूम भी था। And then about 60 people come to attend the church. 60. और उस एक्लीसिया में तकरीबन 60 पीपल आते थे। I was wondering how they all can be accommodated. मैं ताज्जुब हो गया कि इतने सारे लोगों को वहीं पे कैसे बिठाएंगे, Because they got a cot there. क्योंकि उनको वहां पलंग है, Almara is there. वहां पे अलमारा है, Table is there. वहां मेज है, And they have a small table which they use as a kitchen. और एक छोटा सा टेबल था जो वो लोग किचन जैसे यूज करते थे। So I asked that brother, तो मैंने उस भाई से पूछा, where are we going to have the meetings? भाई हम मीटिंग कहाँ रखेंगे? I thought they have hired some hall. मैंने सोचा कि उन्होंने कहीं पे एक हॉल को हायर किया था। And that brother said, लेकिन उस भाई ने कहा, इधर ही भाई जी. इधर ही भाई जी। I was surprised. मैं ताज्जुब, मैंने हैरान हो गया। I asked how many gather. मैंने पूछा कि कितने लोग आएंगे? We gather as 60 people. उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 पीपल आएंगे। We may be having for the special meetings 80 or 100 people. और अगर स्पेशल मीटिंग्स होते हैं तो 80 to 100 पीपल आते हैं। I was wondering, मैं तो हैरान हो गया how था, this is possible. ये मुमकिन कैसा है? And before the meeting started, और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले the next day in the morning, अगले दिन सुबह, after they finished all the cooking, ये रसोई में पूरा पकवान पकाना पूरा खत्म करने के and they बाद cooked for 100 people food in the morning itself. तकरीबन सुबह सवेरे ही तकरीबन 100 लोगों के लिए उन्होंने खाना बनाया था। Put all the dekshas outside, और पूरे डेक्शा जो है वो बाहर लगा दिए, tables outside, और मेज जो है बाहर लगा दिए, almara outside, अलमारा बाहर लगा दिए, kitchen table outside, और रसोई का टेबल जो मेज होती थी उसे भी बाहर लगा दिए। everything was put outside, सब के सब सामान बाहर निकाल दिए, covered with a plastic sheet. और प्लास्टिक शीट डाल दिए उस पर। Then it became a hall. तब वो घर में वो छोटा सा हॉल बन गया, All were sitting close to each other. और सब के सब ऐसा करीब बैठने लगे। About 90 people were there. तकरीबन 90 लोग, 90 पीपल आए थे। And in the night, और रात में all they have to bring everything inside. जो सामान बाहर निकाले वो पूरा अंदर लगाना पड़ा। Again next morning, और अगले दिन same exercise. वैसे ही पूरा सामान बाहर। 3 days they were doing that. ऐसा 3 दिन करते। And then the brother told, और उसके बाद भाई ने कहा, because I said, क्योंकि मैंने कहा brother, था, how difficult this is. भाई ऐसा करना आपके लिए कितना मुश्किल है। He said, उन्होंने कहा, Alava type in Anna. हाँ ये तो आदत बन चुकी है भाई। Why? क्यों? Every Sunday we do this. क्योंकि हर इतवार को हम ऐसे ही करते हैं। So to be hospitable to the people of God, there is a sacrifice that is involved. तो इसीलिए खुदा के बंदों को मुसाफिर परवरी दिखाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। So Aquila and Priscilla were like that. तो अकुला और प्रिस्किला ऐसे ही लोग थे। Do not know how many believers were gathering in their हम house. जानते नहीं थे कि उनके घर में कितने सारे मोमिन लोग आते थे। And because they are quite many people, और क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोग जमा होते थे, they are not few people. वो लोग बहुत कम लोग नहीं थे। Therefore Paul says, यहाँ पौलुस रसूल ने लिखा, oh, greet the church that is in your house. वो कहते हैं कि आपके घर में जो इक्लीसिया है उनसे सलाम कहो। What a large heart they have. कितना बड़ा दिल है उनका, What a sacrificial attitude. कितनी बड़ी कुर्बानी करने वाली आदत है उनको। Are we like that? क्या हम भी ऐसे हैं? Are we such examples? क्या हम भी उस तरह के मिसाल बन चुके हैं? Are we having such good works in our lives? क्या हमारे जिंदगियों में उस तरह के अच्छे काम है क्या? That's why we read in Matthew chapter 5 and verse 16. इसीलिए मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 16 में हम By पढ़ते our हैं, good works the Father in heaven is glorified. हमारे
अच्छे कामों के बदौलत हमारे आसमानी बाप का जलाल हम जाहिर करेंगे। What is that अच्छे कामों? ये अच्छे काम क्या होते They हैं? are like this works of ये hospitality. इस तरह से मुसाफिर परवरी के काम। And then thirdly, और तीसरी in बात, Acts chapter 18, आमाल की किताब बाब नंबर 18 in verse 26 we read, वहां पे आयत नंबर 26 में हम देखते there हैं, came a young man called Apollos. यहाँ पे एक नौजवान आदमी आता है जिसका नाम है अपुल्लोस, He was also preacher. और वो भी तबलीग करने वाला था। He was a very eloquent preacher. वो बहुत जुबानी था। And when they met him, और जैसे ही वो उनसे मिलते in हैं, verse 26 we read, 26वीं आयत में हम पढ़ते in the हैं, middle of the verse, आयत के बीच में, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them. मगर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले आए। हाँ, किधर ले आए? कहाँ ले गए? They brought him to their house. अपने घर ले गए। See what an hospitality it is. देखिए कितनी बड़ी मुसाफिर परवरी है ये। This man was a man of God, ये इंसान खुदा का बंदा है, a young man, ये नौजवान है, full of zeal for the Lord. खुदा के लिए बहुत जोश से भरा हुआ है। He also had the gift of the word of God. उसके पास खुदा का कलाम बयान करने की नेमत है खुदा से। God willing, we'll see about that young man also later on. इस नौजवान के बारे में हम खुदा की मर्जी है तो बाद में But देखेंगे। what did this couple do? लेकिन ये कपल जो है, मियाँ बीवी हैं, ये क्या कर रहे They हैं? invited this young man also to their house उन्होंने इस नौजवान को भी अपने घर ले आए, because they had to guide and counsel him for better ministry. क्योंकि इस नौजवान की रहनुमाई करना चाहते थे ताकि और भी अजीम खिदमत गुजारी मुस्तकबिल में वो गुजार सके। They were hospitable to men of God also. इस तरीके से खुदा के बंदों के बारे में भी उन्होंने मुसाफिर परवर दिखाई। So first of all, they were helpers. तो पहली बात यह है कि वो लोग मददगार थे। Secondly, they were hospitable. दूसरी बात यह है कि वो लोग मुसाफिर परवरी दिखाते थे। And then they were also sacrificial. तीसरी बात यह है कि वो लोग बहुत ही सैक्रिफिशियल है, यानी कुर्बानी करते थे। See verse 4. आयत नंबर 4 Romans देखें, chapter 16 and verse 4. रोमियों की किताब बाब नंबर 16 और आयत नंबर 4। Who have for my life laid down their own necks. उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सिर दे रखा था। What a wonderful thing, isn't it? कितनी अच्छी बड़ी बात है ना? Oh, what a great thing they are doing here. कितना बहुत अजीम काम कर रहे हैं यहाँ For the पे। sake of the man of God, खुदा के बंदे के खातिर oh, they risked their lives. उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिए। They laid down their necks also, it seems. लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना सिर देने के लिए तैयार थे। That means they were prepared even to die. इसका मतलब है कि वो लोग उसके वास्ते मरने के लिए तैयार थे। What a great quality, what a great example in them. कितना बड़ा मिसाल है ना उनकी जिंदगियों में। This also speaks about their love. इसमें भी उनकी मोहब्बत हमें जाहिर होती है। They loved the man of God so much. उन्होंने खुदा के बंदे को इतना चाहा, They wanted to spare the life of the man of God at the cost of their own lives. खुदा के बंदे की जान को वो लोग बाज रखना चाहते थे और अपनी जान देना चाहते थे, Because they did not consider their lives precious to them. क्योंकि उन्होंने अपनी जानों को ज्यादा कीमती अपने लिए नहीं समझा। Many times, बहुत सारी बार oh, I consider my life as precious. मैं तो मेरी जान को बहुत कीमती जानता हूँ। Brother Anil is in some danger, अगर भाई अनिल कुछ खतरे में है, and if I have to go and help him, अगर मुझे जाकर उसकी मदद करने की जरूरत it's going to be है, at the cost of my life. अगर इसे मदद करना मेरी जान के खतरे So what I will खतरे को do? मोलना होता है, What तो I मैं will क्या do? करता हूँ? Will I be prepared to do that? क्या मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? I may love him. मैं उससे बहुत शायद प्यार करूंगा I may be very close to him. और उसके करीब में शायद रहना When it चाहूंगा, comes to a question of life and death, लेकिन जान और जीना और मौत के बारे में जब बात होती है, I will hesitate. मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा। I'll try to put it on somebody else. मैं दूसरों पर ये काम लगा दूंगा Or at the most, I'll try to encourage him with words and pray for him and then try to withdraw. और शायद मैं कलाम दूंगा उसको, उसकी हौसला अफजाई करने की कोशिश करके मैं पीछे हट जाऊंगा। But these couple were not like that. लेकिन ये कपल जो है, मियाँ बीवी जो थे, ऐसे नहीं थे। They came वो forward. आगे आए थे। They were prepared to die in the place of the Lord's servant. खुदा के बंदे की जगह में अपनी जान देने के लिए वो लोग राजी थे। See what an example they are. देखिए कितना बड़ा मिसाल बन चुके थे। And then further we read, और आगे fourthly, और चौथी बात हम जानते हैं, they also knew
the ways of the Lord, ways of God thoroughly. और खुदा की राहों को वो लोग बहुत अच्छे जानते थे, Because again in Acts chapter 18, क्योंकि आमाल की किताब 18वां बाब में if you read verses 25 and 26, और 25 और 26वीं आयतें अगर हम पढ़ेंगे, this young man, Apollos, was deficient with regard to his ministry. ये अपोलोस इंसान नौजवान जो है वो अपनी खिदमत गुजारी में कुछ कमतरी महसूस कर रहा And था। what did this couple do? तो ये मियाँ बीवी क्या किए, When they found that, जब इस बात पर उन्होंने नजर डाली they did not find fault with him, तो उसमें कुछ नुक्स उन्होंने नहीं उठाया, they did not condemn him, उस पर कुछ इल्जाम नहीं लगाया, but instead of that, लेकिन उसके अलावा in verse 26, 26वीं आयत में हम पढ़ते they हैं, not only took them to their home, उन्होंने उनको अपने घर ले गए, इतना ही नहीं बल्कि but expounded unto them the way of God more उसको खुदा की perfectly. राह और ज्यादा सही से बताई। How could they do that? ऐसा कैसे कर पाए? Because they themselves knew the word of God. क्योंकि उनको खुदा की राह अच्छे तरीके से पता थी। They were well read with regard to the word of God. खुदा के कलाम को वो लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। They knew the word of God. खुदा के कलाम से वो लोग वाकिफ थे। They had grown in the grace and the knowledge of the Lord and the word of God. खुदा के कलाम के और खुदा की रहमत और शफकत में वो लोग बड़े थे। So that is how they knew the ways of the Lord, the word of God. इस तरीके से खुदा की राह उनको पता थी। And that is why they could become teachers and expounders. इसी तरीके से वो लोग खुदा के कलाम को बयान करने वाले और तालीम बख्शने वाले बन चुके थे। What will you and I do? लेकिन हम क्या करते हैं? We'll choose the easy option of condemning and setting him aside. दूसरों पर इल्जाम लगाकर उनको बाहर खारिज करने का काम करते हैं। But they did not do that. लेकिन ये लोग ऐसा किए नहीं। They knew the potential that was there in this young man. इस नौजवान के अंदर जो खुदा ने जो ताकत रखी थी उस पर ये लोग गौर किए। They were aware of the spiritual gift and talent Apollos had. और अपोलोस को खुदा ने जो रूहानी नेमतें दी थी, बरकतें बख्शी थी, उन पर ये लोग गौर किए। They knew that he would be required in the Lord's vineyard. खुदा की पाकिस्तान में उसकी जरूरत है करके ये लोग समझ लिए। And so what did they do? इसीलिए क्या किए थे? They did not deal with him straight away there. सीधा जाकर उस पर लानता नहीं किए, They took him home. लेकिन घर ले गए, They gave him hospitality. उसको मुसाफिर परवरी दिखाए, They showed his love. उसको उस पर Their love. मोहब्बत जताए, They took care of him. उसकी हाजतें रफा की, And then they also expounded the word of God more perfectly. और उसके बाद खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। Because that young man needed perfection. क्योंकि उस नौजवान को कामिल होने की जरूरत थी। He required proper expounding of the word. सही कलाम का सही बयान की जरूरत थी। He required proper knowledge of the word of God. खुदा के कलाम का सही इल्म की जरूरत थी। And therefore they met that need in that young man. इसीलिए उस नौजवान की इस जरूरत को उन्होंने पूरा किया था। Nowadays this is what we find around us. हमारे इर्द गिर्द आजकल हम भी यही देखते हैं। People are not fully aware of the word of God. लोग खुदा के कलाम के बारे में मुकम्मल तौर से वाकिफ नहीं रहते They हैं। do not know the sound and the right and the healthy doctrine. जो कलाम जो सेहतमंद कलाम जो होता है उस कलाम को मुकम्मल तौर पर जानते नहीं हैं। What should be our attitude? तो हमारा रवैया कैसा रहना चाहिए? Not to condemn them. उन पर लान तान करना नहीं, Not to insult them. उन पर मलामत करना नहीं, Not to ignore them. उनको नजरअंदाज करना नहीं, But to receive them. बल्कि उनको अपने पास ले आना, Take them closer to yourself. अपने पास उनको खींचना, And by the help of the word of God and the Spirit of God, Holy Spirit of God, और खुदा के कलाम के जरिए से और पाक रूहुल कुद्स की मदद के जरिए से try to do this work of correction and expounding lovingly. प्यार से मोहब्बत से आप इस्लाह उनको देना है और इस तरीके से खुदा के राहों को बताना You है। know why I say that? मैं ऐसा क्यों कर रहा Because हूँ? if we are in a fellowship, we are
taught the right doctrine. क्योंकि हमारे फेलोशिप में, जमात में हमको सही कलाम सिखाया गया है। At the same time, I'm not becoming proud about our fellowship. इसी वक्त मैं इस बात को लेकर मैं हमारे फेलोशिप के बारे में, जमात के बारे में बहुत ज्यादा फख्र नहीं करूंगा। Please don't misunderstand. There's no attitude of pride here. मेहरबानी करके मुझे गलत मत समझना कि यहाँ पे कुछ फख्र हो रहा है। In all humility, I say that मैं बहुत हलीम बनकर ये बात मैं कबूल करता God has हूँ been gracious to give us the right word of God. कि खुदा ने बहुत रहमत से हम पर अपना सही कलाम बख्शा है। But as we look out in the world, लेकिन अगर हम दुनिया में देखेंगे so much of wrong doctrine is there. बहुत सारा गलत तालीम देखते हैं And people are being deceived. और लोग धोखे खाते हैं They are being misled. और राह भटकते हैं। Some are not even being prepared properly for the Lord's coming. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुदा की आमद के लिए, यीशुआ की आमद के लिए सही तरीके से तैयार भी नहीं हो रहे हैं। What is our responsibility? लेकिन आज हमारा रवैया और जिम्मा क्या है? Shall we be impertinent, unconcerned about all this? क्या हम इन सभी बातों को नजरअंदाज करें? Let us be alert to this need these days. आजकल ये जरूरत जो दुनिया में है, उस जरूरत के ऊपर हम नजर डालें। Let us with prayer, humility, and the Spirit of God do this work of correction and expounding. बहुत हलीम बनकर दुआ के साथ, खुदा के रूहुल कुद्स की मदद के साथ सही कलाम का बयान करना और दूसरों को सही राह पर ले आने का काम करें। So this is how this couple were a good example to the believers. इस तरीके से ये मियाँ बीवी जो थे, खुदा के मोमिनों के लिए बहुत अच्छे मिसाल बन चुके थे। And they are an example to us even today. आजकल हमारे लिए भी एक अच्छा नमूना है। May the Lord give us the grace to follow their example. इस तरीके से उनका नमूना हम भी सीखने का रहम खुदा हम पर अता They फरमाए। were helpers in the Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में वो लोग मददगार थे। They were hospitable. वो लोग मुसाफिरों की हौसला अफजाई करते थे। Hospitable to the man of God and the men of God. और इतना ही नहीं बल्कि वो लोग खुदा के खादिम और खुदा के बंदों की मदद करते थे। They were also hospitable to the believers. मुसाफिर परवरी यीशुई मोमिनों के वास्ते भी करते थे। And then they were also sacrificial. इतना ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में कुर्बानी थी। And then we saw that they had the knowledge, the good and sound knowledge of the word of God. इतना ही नहीं बल्कि हमने ये भी देखा कि उनकी जिंदगियों में खुदा के कलाम का सही और मजबूत इल्म भी उनकी जिंदगियों में थी। And they were also expounder of the right word of God and also loving correctors and instructors. खुदा का कलाम सही ढंग से पढ़ाने वाले थे और दूसरों को इस्लाह करके सही राह पर मोहब्बत से ले आने वाले थे। What sort of examples are we today? आजकल हम किस तरह के नमूना बन चुके हैं? Are we like this couple? क्या हम भी इस कपल जैसे हैं? Then praise the Lord. तो खुदा का हम्द हो। That means the Lord is using us. इसका मतलब ये है कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। Otherwise, अगर ऐसा नहीं this है evening let us tell the Lord, तो आज शाम को हम खुदा से ये कहेंगे, Lord, make me like this Aquila and Priscilla, ऐ खुदा मुझे इस अकुला और प्रिस्किल्ला की तरह हमें बना दे, so that thy purposes may be accomplished and fulfilled in the present day world. ताकि आपकी मर्जी हमारी जिंदगियों के जरिए से आजकल के मौजूदा जहां में पूरे हो। And the Lord will answer our prayer. और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। So with these few thoughts, let us examine ourselves. तो इन चंद बातों के जरिए से हमारी जिंदगियों को हम परखेंगे, Set things right. हम सब कुछ ठीक करेंगे। If there is any defilement coming to us, अगर हमारी जिंदगियों में कुछ खराबी आ चुकी है, let us ask the Lord's forgiveness. खुदा की मुआफी हम मांगेंगे। Let us be washed and cleansed by the blood of the Lord. हमारे खुदावंद यीशुआ के खून में हम अपने आप को धो कर नेक व पाक बना लेंगे। And then let us take part worthily in the Lord's table. और इस तरीके से खुदा की मेज में हम रास्तबाजी के तरीके से हाथ डालेंगे।